وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اما بعد. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت وسواس الخناس یعنی وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے کہ اللہ ہم کو والناس انسانوں کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین. یہ میں کیوں پڑھا آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے یہ سورہ خاص کر یہ آیت کیوں پڑھی. ٹھیک ہے. تو ادھر پہ جو ہے حال ہی میں ایک حدیث ہے. وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث اکثر پیش کی جاتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہ حدیث اس طرح ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں اس کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا. اس کے بارے میں خلاصہ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے 3 احادیث پیش کروں گا. ٹھیک ہے. 3 احادیث پیش کروں گا. سب سے پہلے جو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 3502 میں ایک حدیث ہے. حدیث اس طرح ہے کہ عروہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب میری بہترین اور ایک روایت میں ہے افضل بیٹی ہے, میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی. یہ بات علی بن حسین تک پہنچی تو وہ عروہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ کون سی حدیث ہے جو مجھ تک پہنچی ہے, یہ کون سی حدیث ہے جو مجھ تک پہنچی ہے جس میں تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کر رہے ہو. تو اس حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی انسان کی فضیلت اس طرح سے بیان نہ کی جائے کہ دوسرے کی اس میں تنقید ہو. جیسا صحیح بخاری وغیرہ میں بہت سی حدیث کی کتابوں میں جو ہے صحیح حدیثوں کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام دوسرے پیغمبروں کے اس میں میری فضیلت کو نہ بڑھاؤ. یعنی اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح سے نہ بڑھاؤ کہ جس کی وجہ سے دوسرے انبیاء علیہ السلام یا پیغمبر علیہ السلام کی تنقید ہو سکے. جیسا ہم نے یہ بھی ایک صحیح حدیث دیکھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک حدیث ہے. اور ایک حدیث جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے کہ مومن علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا اور منافق بغض. اس کے اندر 2 چیزیں بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مومن کا ذکر کیا ہے کہ وہ مومن جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے اور منافق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کریں گے. ٹھیک ہے. اب ادھر پہ یہ حدیث کا خلاصہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کی طرف لے جاتا ہوں. یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے کیا یہ فضیلت صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمام انصار کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے تعلق سے بھی یہ فضیلت بیان کی ہے. 237 میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں سنا آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا
इनसे मोहब्बत नहीं करता मगर वही जो मोमिन है, और इनसे बुग़्ज़ नहीं रखता मगर वही जो मुनाफिक है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 237 में हदीस आपको मिल जाएगी। तो इससे पता चलता है, अब यहाँ सिर्फ एक सहाबी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया, बल्कि तमाम अंसार के सहाबा इसके अंदर जो है ना शामिल होते हैं, जो अंसारी सहाबा है। ठीक है, ये उस हदीस की तरफ आते हैं जो नीम राबजी फिरके जो है, खासकर इंजीनियर अली मिर्ज़ा, कज़्ज़ाब, मक्कार, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, या तो यूँ कहिए कि गिरगिट से भी ख़तरनाक रंग बदलने वाला कौन? नीम राबजी, इंजीनियर अली मिर्ज़ा, बलवाइयों का, सबाइयों का रूहानी औलाद, और इसके जो नादान लौंडे हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसको ये करते हैं, जिनका जो इल्म के मैदान में फ़कीर है और जज्बाती है, और उनका दिमाग का आलम यह है कि वो दिमाग के कमज़ोर है, जो इसके चाहने वाले जो लोग हैं, जो ये हदीस अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ताल्लुक़ से जो हदीस है कि मोमिन मोहब्बत करेगा मगर मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा, ये हदीस को लेकर, इस हदीस के अंदर मैंने जैसे कहा कि इस हदीस को के अंदर दो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। पहली मोमिन की बात कि मोमिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करेंगे बेशक, और मुनाफिक जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ करेंगे। अब ये जो बुग़्ज़ का जो आलम है और ये मोहब्बत का जो आलम है, ये दिल का है मामला। ज़ाहिरी तो बहुत से लोग बताते हैं, जैसा मिसाल मैं आगे आपको मिसालें भी पेश करूंगा दलीलों के साथ, कि ज़ाहिरी बहुत से लोगों ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का ऐलान भी किया, लेकिन हकीकी उनके दिलों में जो है बुग़्ज़ था, कीना था, कपट था। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो फजीलत, जो सबसे पहली बात इसमें बताई गई है इस हदीस में कि मोमिन मोहब्बत करेगा, इसके अंदर जो है ना तमाम के तमाम सहाबा, अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अजमईन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम अज़वाज मुतहरात, ये तमाम जो है ना ये पहली कैटेगरी में पहले इसमें आते हैं। अब दूसरे इसमें जो आते हैं, यही वो बलवाई, यही वो दरिंदे सबाई, यही वो बागी, यही वो खारजी, जिन्होंने जो मुसलमानों में फितने फैलाने के लिए सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को आपस में लड़वाने, या सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन को जो है के साथ जंग करने या उनको शहीद करने के जो मंसूबे बनाए हुए थे। लेकिन इधर पे एक एतराज़ ये है, एक इश्काल ये है, ये जो दूसरी कैटेगरी बताई गई है कि दूसरी कैटेगरी जो बताई गई है कि मगर मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा, ये दूसरी कैटेगरी के अंदर जो नीम राबजी फ़िरके के जो लोग हैं, इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो नादान लौंडे हैं, चंद जो लौंडे हैं नीम राबजी मिर्ज़ा के फॉलोवर, ये दूसरे जो बात है कि मगर मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा, इसके अंदर सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुमार करते हैं। कैसा शुमार करते हैं? एक वसवसा पैदा करते हैं कि ये हदीस बयान करते हैं और फ़ौरन इसके बाद कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ झगड़ा किया था, उनके साथ जंग की थी। तो एक ये वसवसा पैदा करते हैं। जो मैंने शुरुआत में जो वसवासिल खन्नास जो पढ़ा था, ये इसीलिए पढ़ा था क्योंकि अल्लाह ने इधर कहा है कि दुआ करो, ऐ अल्लाह मुझे इंसानों के वसवसों से भी महफूज रख, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। वसवासिल खन्नास, जो खन्नास किस्म के लोग हैं, ये वही खन्नास किस्म के लोग हैं जो वसवसा पैदा करते हैं। ये हदीस बयान कर कर और कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ झगड़ा किया था। अच्छा, ठीक है। एक उसूल इन्हों बयान करते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अमीर मुआविया का झगड़ा हुआ, इसलिए उनके दिल में नौज़ुबिल्लाह बुग़्ज़ है। ठीक है, क्या ये उसूल के तहत क्या ये उसूल को अपनाया जाएगा? अगर ये उसूल को अपनाएंगे तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इसके अंदर अहले बैत भी शुमार होंगे, इसके अंदर बड़े बड़े सहाबा भी शुमार होंगे। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ।
जैसे अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 4577, 4577 ये हदीस है। इस हदीस के अंदर, हदीस बहुत ही लंबी है, जिसको शौक है तो वो पढ़ ले, मैंने हदीस नंबर बता दिया हूँ। इस हदीस के अंदर जो है अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जंग खैबर में, जब वो खैबर फतेह हुआ तो उस वक्त जो माल गनीमत मिला था, उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बाग फदक मिला था, तो वो बाग फदक को लेकर जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास आते हैं कि इनके पास, कि ये इनके दोनों के दरमियान फैसला किया जाए। तो आने के साथ जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूछते हैं अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि बताइए क्या मामला है, तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है, यानी दोनों के बीच में झगड़ा होता है, और ये झगड़ा इस हद तक जाता है कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऐसे अल्फाज कहते हैं, वो अल्फाज मैं आपके सामने पेश करूंगा। अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा और इस झूठे गुनाहगार दगाबाज चोर का फैसला कर दीजिए। यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जो है अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अल्फाज कहते हैं, गुनहगार, दगाबाज, चोर, झूठा वगैरह, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मतलब ऐसे अल्फाज कहते हैं। यानी इससे पता चलता है कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ था। अगर मामूली झगड़ा होता था तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने ऐसे अल्फाज या ऐसी चीज़ें ना कहते थे, ऐसी बातें ना कहते थे। तो इससे पता चलता है कि अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बीच में झगड़ा हुआ था। ठीक है, अब आगे चलकर जंग जमल हुई, जिसके अंदर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मध्य मुकाबिल उम्महातुल मोमिनीन, मुसलमानों की माँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ थे, उनके मुकाबिल उनके खिलाफ थे तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा में थे, जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरा मुबशरा में थे। ये बड़े बड़े सहाबा जिनका जंग जमल हुआ, जिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मध्य मुकाबिल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जंग हुई। तो क्या ये जंग, ये झगड़े की बुनियाद में भी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनको दूसरी कैटेगरी में शुमार किया जाएगा, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से इस हदीस में बयान भी है? हरगिज़ नहीं। और जो भी शुमार करेगा वो वही सबसे बड़ा मुनाफिक होगा। तो फिर अब आइए, अब दूसरे अहले बैत की बात लेते हैं, अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जंग सुफ़ैन में, जंग सुफ़ैन को लेकर ही जो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नौज़ुबिल्लाह बुरा भला कहा जाता है, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, उनकी शान को बदनाम किया जाता है, या उनकी शान को मजरू बताने की नाकाम कोशिश की जाती है जंग सुफ़ैन को लेकर ही। अभी तो जंग सुफ़ैन में जो है बड़े बड़े सहाबा, बैत रिज़वान वाले, यहाँ तक के अहले बैत वाले अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आले मोहम्मद है, जिनके ऊपर सदका हराम है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है कि उनके ऊपर जो है आले अकील पे, आले अब्बास पे, आले अली पे जो है सदका हराम है। ये बड़ी मारूफ हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस है ये। तो ये अब अकील बिन अबी तालिब भी जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का साथ दे रहे जंग सुफ़ैन में। तो क्या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इनको भी दूसरी कैटेगरी में शुमार किया जाएगा? मुगीरा बिन शैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बैत रिज़वान में थे, जिनको जन्नत का वादा किया गया, जिसका इकरार ये नीम राबजी पलम्बरी फ़िरका जो है, मिर्ज़ा इंजीनियर जो है, ये भी इस बात का इकरार करता है कि बैत रिज़वान वाले जो है वो इनको भी जन्नत का सर्टिफिकेट, जन्नत का वादा किया गया है। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बैत रिज़वान में शामिल थे, जिनको जन्नत की बशारत दी गई, और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये हादी है, महदी है, और जन्नत की सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि सबसे पहले जो समंदरी जिहाद करेगा वो जन्नती होगा। तो ऐसे सहाबा को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दूसरी कैटेगरी में शुमार करना, ये उन्हीं बलवाइयों का, ये उन्हीं
ये उन्हीं बलवाइयों का, ये उन्हीं सबाई दरिंदों का, ये इन्हीं खवारिजों का जो है ना शुमार होता है मुनाफिकों में। जो और आज के इनकी जो रूहानी औलाद है, जैसे नीम राबजी, मिर्ज़ा पलम्बर के चाहने वाले जो है, जो नादान लौंडे हैं, ये इन्हीं मुनाफिकों में, यही बलवाइयों की रूहानी औलादें हैं जो अमीर माविया या दूसरे सहाबा की शान में जो है गुस्ताखी करते हैं। यही वो रूहानी बलवाइयों की औलादें हैं जो इंजीनियर अली मिर्ज़ा के जो चंद लौंडे हैं, फॉलोवर, जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की शान में जो है गुस्ताखी करते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक बात पता चलती है कि जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जो दूसरी कैटेगरी जो बताई गई है कि मगर मुनाफिक बुग़्ज़ करेगा, इसके अंदर एक भी सहाबी, एक भी अहले बैत शुमार नहीं होता है। ये बलवाई की रूहानी औलादें, ये सबाई दरिंदों की रूहानी औलादें, नीम राबजी, मिर्ज़ाई फ़िरके वाले, जो शैतानी उसूल से, इस उसूल के तहत, ये इस उसूल को अगर अपनाकर अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अगर शामिल करेंगे तो अहले बैत भी शामिल होंगे। क्यों? अहले बैत का भी जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से झगड़ा हुआ था, जैसा हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह बताया दलीलों की रोशनी में, बुखारी और मुस्लिम की रिवायतों को पढ़कर। अहले बैत का भी जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से झगड़ा हुआ था, इख्तिलाफ हुआ था। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2481, 2481 में हदीस है। हदीस इस तरह है, अब्दुल मुत्तलिब बिन रबिया से रिवायत है कि जमा हुए रबी बिन हारिस और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दोनों ने कहा कि अल्लाह की कसम हम बेच दें इन दोनों लड़कों को, यानी मुझको और फुज़ैल बिन अब्बास को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ये दोनों जाकर अर्ज़ करे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तहसीलदार बना दे इन ज़कात पर, और ये दोनों हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर अदा कर दे जैसा और लोग अदा करते हैं, और कुछ इनके मिल जाए जैसे और लोगों को मिलता है। घर से ये गुफ्तगू हो रही थी कि अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, इनके आगे खड़े हुए और इन दोनों ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसका जिक्र किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मत भेजो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम ऐसा नहीं करने वाले। बस बुरा कहने लगे हज़रत अली को, रबी बिन हारसा, और कहा कि अल्लाह की कसम तुम हमारे साथ ये जो करते हो तो हसद से, और कसम है अल्लाह पाक की कि तुमने जो शर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दामादी का पाया है तो इसका तो हम तुमसे कुछ हसद नहीं करते। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अच्छा इन दोनों को रवाना करो, और हम दोनों गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेट रहे थे। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ चुके तो हम दोनों जल्दी हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जा पहुँचे। ठीक है, अब हदीस लंबी है, तो इधर बताने का मेरा मकसद मंशा ये है कि यहाँ पे जो है ना क्या कह रहे हैं कि बुरा कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से ये कहा कि वो इनसे हसद करते। तो भाई, तो क्या इधर भी दूसरे कैटेगरी में अब्बास बिन मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और आरसा बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, ये दोनों को भी शुमार किया जाएगा? क्योंकि इधर भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नुकझोंक हुई। अब और एक मैं हदीस बयान करता हूँ ताकि ये जो फर्जी उसूल इन बलवाइयों की रूहानी औलादों ने जो बनाया है, इस फर्जी उसूल का रद्द हो सके। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 357 में हदीस है। उसके अंदर जिक्र है कि उम्मे हानी बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है इख्तिलाफ होता है, झगड़ा होता है। किसको शौक है तो ये पूरी हदीस पढ़ ले, क्योंकि
वीडियो लंबी मतलब मैं तवील नहीं करना चाहता हूँ, मुख्तसर सी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं हदीस बयान नहीं कर रहा हूँ। मैंने हदीस नंबर बताया हूँ, हदीस की तरफ इशारा किया हूँ, अगर किसको शौक है तो पढ़ ले कि इधर पे जो है उम्मे हानी अबी तालिब यानी अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो साहबजादी है, जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है, उनसे भी जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इख्तिलाफ होता है, झगड़ा होता है। तो अब क्या इधर भी इन बलवाइयों की रूहानी औलादों की फर्जी उसूल को लेकर जो है क्या उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी नौज़ुबिल्लाह की दूसरी कैटेगरी में शुमार किया जाएगा? हरगिज़ नहीं। तो ये दूसरी कैटेगरी में कौन से लोग शुमार होते हैं उसका भी मैं आपको तस्करा करूंगा। अब इस दूसरी कैटेगरी में जो है ना, इधर भी मैं एक हदीस बयान करूंगा, आप समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा कि असल में मुनाफिक किसे कहा जाता है, और वही किस्म के लोग जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ करते थे, जो दलीलों से भी साबित होता है। तो इधर पे एक हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 7043 7043। ये हदीस है। हदीस इस तरह है, उबैदुल्लाह ने नाफे से, उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की तरह है जो बकरियों के दो रेवड़ों के दरमियान मिमियाती हुई यानी पुकारती हुई भागी फिरती है। कभी भागकर इस रेवड़ में जाती है और कभी इस तरफ जाती है, किसी भी एक रेवड़ का हिस्सा नहीं होती, किसी भी एक रेवड़ का हिस्सा नहीं होती। यानी मुनाफिकों की एक मिसाल अल्लाह के रसूल ने बताई है कि ये किसी एक जगह पे नहीं रुकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, अब इधर पे मुनाफिक की सिफत तो हमको पता चली कि मुनाफिक की सिफत ऐसी है कि वो किसी एक रेवड़ में यानी एक जगह पे नहीं रुकते हैं, कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मगर बुग़्ज़ करेगा मुनाफिक। जो ये फजीलत है, जो ये दूसरी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में वही मुनाफिक लोग शुमार हैं जो हज़रत उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किए थे, जिसके अंदर मैं एक नाम लूँगा, मालिक अश्तर नकी। मालिक अश्तर नकी, इसकी दलील भी दूंगा। ठीक है, उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु, ये मालूम सबको बिल इत्तेफाक इस बात को सब लोग मानते हैं कि उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजलूमाना तौर से शहीद करने में जो है मालिक अश्तर नकी का भी हाथ है। तो इनका जो ये बलवाइयों का एक जमात था, बाकायदा तकरीबन 2,500 लोगों का जो है ये पूरा एक जमात था, एक ग्रोह था। ये कितना 2,500 लोगों का एक ग्रोह जमात था। इसके अंदर 20 से 25 ऐसे बड़े मतलब सरदार थे, इनके 20 से 25 लोग जो है ना सरदार थे। इनमें जो है एक मालिक अश्तर भी था, जो उस्मानी गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग्रोह में शामिल हो गया। ठीक है, अब इन्होंने ग्रोह बनाया, यानी अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि ये एक जगह पे टिके हुए नहीं रहते। इन्होंने खलीफा वक्त के खिलाफ जो है, पहले तो इनको खलीफा मानते थे, फिर इनके खिलाफ बगावत की और मजलूमाना तौर से शहीद किया। फिर ये जगह से उठकर अली रज़ियल्लाहु ताला के ग्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, अली रज़ियल्लाहु ताला के ग्रोह में जो है ये बलवाई दरिंदे, जो 2,500 लोगों का लश्कर था इनका, ये अली रज़ियल्लाहु ताला के ग्रोह में शामिल हो गए। और इनकी जो 20-25 जो सरदार थे वो अली रज़ियल्लाहु ताला की यहाँ पे जो है अहदों पे फायज हो गए। फिर यानी अब जगह बदल कर अली रज़ियल्लाहु ताला के ग्रोह में शामिल हुए, इधर पे जो है वो अहदों में शुमार हो गए। ठीक है, फिर जैसे ही अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग जमल के वक्त जो है, सुफ़ीन के वक्त, जंग जमल और सुफ़ीन के वक्त जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह करने के लिए पहल की, तो यही बलवाई जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग्रोह में शामिल होकर एक जगह पर आ गए थे, यही बलवाई जो है जब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुलह के लिए मुहिम चला रहे थे, फिर यही बलवाई जो है वापस से अपनी जगह कैसे चेंज की, मैं इसकी रिवायत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल बिदाया वल निहाया, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 467 में
صفحہ نمبر 46C1 میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ یہ بلوائی جس کے اندر مالک اشتر بھی تھا، وہ لوگ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی جمل کے تعلق سے، صلح کرنے کے تعلق سے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل تھے یا ان قاتلوں کی کسی بھی طرح سے ذرہ برابر بھی اگر مدد کی ہے تو وہ لوگ جو ہے مطلب صلح کے لیے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمیٹی بنا کر مشورہ کرنا چاہتے تھے اس کمیٹی میں شامل نہ ہو، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ پھر جب اعلان ہوا تو مالک اشتر اور یہ بلوائی جو 2,500 لوگوں کا جو گروہ تھا اور اس کے جو 20-25 جو اس لشکر کے جو سردار تھے وہ لوگ الگ سے میٹنگ لیے، اور اس میٹنگ میں مالک اشتر نکی کے جو الفاظ ہے وہ الفاظ ملاحظہ فرمائیے، وہ کہتا ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ صلح کر لیتے ہیں یا پھر وہ اگر صلح کر لیں گے جمل والوں سے، پھر تمام مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہم سے جو ہے خون کا ہمارے مطلب پھر یہ صلح کر لیں گے، پھر یہ لوگ ہمارے خون بہانے تک یہ لوگ رکیں گے نہیں، تو اگر یہ صلح کر لیتے ہیں تو ہم لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ چیز معروف بھی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے، جب صفین میں باقاعدہ صفین کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جب صلح ہوئی تو پھر تحکیم کا جو مسئلہ ہے صلح ہوئی، اس کے بعد جو ہے یعنی یہ جو منافق صفت لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ یہ لوگ ایک جگہ پر ٹکے ہوئے نہیں رہتے، ہر وقت انہوں جگہ بدلتے رہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانتے تھے، پھر اس کے بعد جگہ چینج کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی، پھر اس کے بعد واپس سے اور جگہ چینج کر کے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہوئے، پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پہل کی تو پھر واپس سے اور جگہ چینج کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، پھر جب صلح ہو گئی تو یہی بلوائی درندے لوگ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے جب فجر کے لیے وہ نکلے تھے تو یہی باغی خوارج بلوائی منافق لوگ جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور سے شہید کیا۔ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری کیٹیگری بتائی تھی، مگر منافق بغض کرے گا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، یہی اس لیے میں نے کہا کہ جو نفاق کا جو معاملہ ہے یہ دل سے ہوتا ہے، ایمان کا ہی معاملہ دل سے ہوتا ہے، تو ان کے دل میں جو منافقت تھی، یہ بلوائی درندوں کے مالک اشتر کے یہ یا اس کے علاوہ دوسرے جو بلوائی جو سبائی گروہ کے جو درندے لوگ تھے، ان کے دل میں جو ہے نا یہ نفاق تھا، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر کے، جیسا خوارج ہے جو جنگ نہروان ہوئی، جو مشہور جنگ ہے جس کا ذکر یہ نیم رافضی لوگ بھی کرتے ہیں، پلمبری فرقے کے یہ منافق صفت لوگ بھی کرتے ہیں، دیکھیے نا صفت بھی لوگ کرتے ہیں، میں ان کو منافق کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس کی وضاحت بھی کروں گا انشاءاللہ۔ تو یہی بھی لوگ کرتے ہیں کہ جنگ نہروان ہوئی، اور جنگ نہروان کس کے خلاف ہوئی؟ خوارجوں کے خلاف، اور یہ خوارج تھے کون؟ یہ خوارج وہی تھے جنہوں نے جمل اور صفین میں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہی وہ خوارج تھے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کیٹیگری جو بتائی گئی تھی کہ مگر منافق بغض کرے گا، اس کیٹیگری میں جو ہے ایک بھی صحابہ شمار نہیں ہوتے، یا ایک بھی مسلمان ایمان والا جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ بلوائی درندے سبائی گروہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، یا یوں کہیے کہ جھوٹی محبت کا دم بھرا، واپس سے پھر خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پہلی کیٹیگری جو بتائی گئی ہے کہ مومن محبت کرے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کیٹیگری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شمار ہوتے ہیں، مغیرہ بن شیبہ، اما عائشہ، طلحہ، زبیر، عمرو بن عاص، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل بن ابی طالب، ام ہانی،
हारसा बिन रबिया, ये तमाम सहाबा और तमाम वो लोग जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका इख्तिलाफ हुआ था पुरखुलूस नीयत से, यानी उनके दिल में ना ही निफाक है और ना ही उनके दिल में कीना है, कपट है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से। बस एक इज्तिहादी मसले को लेकर जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इख्तिलाफ हुआ, झगड़ा हुआ। इनके दिलों में जो है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत है। जो वसवासिल खन्नास है, जो वसवसा छोड़ते हैं, वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, खासकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से छोड़ते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में ही जिक्र किया था, ये हदीस बयान करते हैं, फिर कहते हैं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से झगड़ा हुआ था। और झगड़ा कौन करता है? ये खुद आप फैसला करें, यानी एक वसवसा छोड़ते हैं। तो आइए मैं आपके सामने एक रिवायत पेश करूंगा जो सही सनद के साथ है, जो मुस्नद अबी आला में है कि एक शख्स आकर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूछते हैं क्या आप अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खिलाफत के लिए लड़ते हैं? क्या आप अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं? तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, हम खिलाफत से ज़्यादा हकदार तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हम तो बस किसास उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुतालबा करते हैं। कौन कह रहे हैं? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इधर से ये बात जाहिर होती है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इख्तिलाफ हुआ था, वो सिर्फ यानी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इख्तिलाफ किया था वो सिर्फ और सिर्फ पुरखुलूस नियत, साफ नियत थी कि किसास उस्मान लिया जाए, यानी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून का बदला लिया जाए, जिसका जिक्र कुरान में है। यानी इस मुतालबे से कुरान का जो हद है, जो कुरान ने जो शरिया नाफिज की है, वो शरिया जो है लोगों में पैदा हो सके, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि एक मुसलमान और साहबी अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बलवाई की रूहानी जो औलादे है ये भी मानते हैं। ठीक है, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक मारूफ हदीस है कि अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे अल्हम्दुलिल्लाह पता चलता है कि अहले बैत, सहाबा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके दिन में ये जो है ये पहली कैटेगरी में शुमार होते हैं कि मोमिन मोहब्बत करेगा अली रज़ियल्लाहु ताला अली से, मोमिन मोहब्बत करेगा अली से। ये पहली कैटेगरी में तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, अमीर मुआविया, मुग़ीरा बिन शैबा, तलहा, जुबैर, अम्मा आयशा, अम्र बिन आस, तमाम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अकील बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम सहाबा जो है ना पहली कैटेगरी में शुमार होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में हमने दलीलों से वजाहत कर दी कि दूसरी कैटेगरी में वही मुनाफिक है, वही बलवाई सबाई दरिंदे हैं जो मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए, फितना बर्पा करने के लिए बहुत से साजिशें रची। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हो गया। तो मैं एक बात बोला था कि ये बलवाई सबाइयों की रूहानी औलाद इंजीनियर अली मिर्ज़ा, कज़्ज़ाब, मक्कार, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, और इसके लौंडे मुनाफिक क्यों है? क्योंकि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है, कज़्ज़ाब, मक्कार जो है, ये भी जो है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक बकरियों की तरह जगह बदलते रहता है। मुनाफिक जो है बकरियों की तरह इधर से इधर जगह बदलता है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा भी यही करता है, यानी ये वही मनहज पे है। इसके बाप दादा, रूहानी जो बाप दादा है, मालिक, अस्तर, बलवाई, दरिंदे, सबाई, खारजी, मुनाफिक जो है, ये उन्हीं की मनहज पे जो है ये भी उसी तरह रंग बदलते रहता है। जो अल्लाह के रसूल ने कहा, मुनाफिक की सिफत जो बताई है अल्लाह के रसूल ने, जैसा हमने हदीस पढ़ा, कभी ये शिया रावजियों के गोलकीपर, उनका गोलकीपर बनता है,
ان کے کفریہ اور شرکیہ عقیدوں کا دفاع کرتا ہے، بھی منکر حدیث کا دفاع کرتا ہے. خاص کر یہ جو منکر حدیث ہے گامدی، یہ اس کو اپنا استاد مانتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو قادیانیوں کا بھی دفاع کرتا ہے، کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے اس نے نبوت کی مطلب نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ضمنی تو دعویٰ کیا، ضمنی. آپ بھی فیصلہ کیجئے، میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے لیے بہت وقت چلا جائے گا. تو ادھر بھی یہ کہتا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انجینئر علی مرزا بھی جو ہے نا ایک تو گرگڑ کی طرح رنگ بدلتا ہے، اور جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی پہچان بتاتے ہوئے مطلب صفت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ جگہ بدلتے رہتے ہیں، ایک ریوڑ میں ایک اس میں یہ نہیں رہتے ہیں، ہر وقت جگہ بدلتے رہتے ہیں. کبھی انجینئر علی مرزا کبھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اجتہادی خطا میں شمار کرتا ہے کہ ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، کبھی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے ظالم تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہ پہلے یہی کہتا ہے کہ یہ ان سے بھی اجتہادی غلطی ہو گئی. ابھی نعوذ باللہ من ذالک ان کے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہتا ہے کہ بیڑا گرک وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک. کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کی، جو ہمارے شیخین ہیں ابو بکر، عثمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کبھی ان کی فضیلتیں بیان کرتا ہے، اور کبھی یہ ایسا بتاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے خلیفہ، یعنی یہ ان سے بہتر خلیفہ جو ہے، ان سے افضل جو ہے حضرت علی ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بتاتے ہیں کہ دور نبوت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، انشاءاللہ اس پہ میں تفصیلی ایک ویڈیو بنانے والا ہوں، دور میں ہی ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہ افضل شمار ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے اس بات کا اقرار کیا ہے. تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ ایک اہل بیت کے نام کا جو محبت کا جو چورن دے کر، کیا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی محبت کا نام کا جو چورن بیچ کر یہ دے کر اپنے جو اس کے جاہل، جذباتی، کمزور دماغ کی جو اس کے چند نادان لونڈے ہیں، ان کو یہ چورن دے کر جو ہے نا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان کو جو ہے نا مجرور قرار دینے کی، یا ان کی شان کو جو ہے ان کی شان میں تنقید کرنے کی جو ہے نا یہ کوشش کرتا ہے، ان کی شان کو بدنام کرنے کی جو ہے نا یہ ناکام کوشش رہتا ہے. تو یہ بھی گرگڑ کی طرح رنگ بدلتا ہے، ایک جگہ پہ رکتا نہیں ہے، ادھر سے ادھر رہتا ہے. تو الحمدللہ حدیثوں کی روشنی میں، دلائلوں کی روشنی میں جو ہے الحمدللہ ادھر ثابت ہوتا ہے کہ انجینئر علی مرزا قذاب، مکار، رافضی، سبائی، بلوائی کی روحانی اولاد جو ہے نا یہ منافق بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منافق کی شر سے، اس منافق کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.